translation, so that is protein synthesis. Synthesis of a polypeptide from the mRNA is called translation. It takes place in the cytosol of both prokaryote and eukaryote. So, translation requires mRNA, tRNA, ribosomes, magnesium ion, ATP, GTP, initiation factors 1, 2, 3, elongation factors, your elongation factors with 2 complex, releasing factor. These are the requirements of translation, as it is a complex and coordinated process, so it requires a number of cellular factors or components. So it has different steps. We can broadly divide it into 3: initiation, elongation and termination. Initiation, elongation and termination. Initiation, elongation and termination. So the first part is your initiation. It is also a multi-step process. Translation, initiation. The first one is your activation of amino acids. Activation of amino acids. There are actually 20 amino acids which make up protein, but in cytoplasm they are not present in an activated form. So first step is needed is the activation of amino acid, and it is only possible by the energy driven by ATP hydrolysis. So remember, in prokaryotes commonly the first amino acid to be activated is F-met, or it is called as formyl methionine. Formyl methionine. Then formyl methionine gets the energy from ATP hydrolysis to form first amino acyl AMP. That means formyl methionine AMP. Not a formyl methionine AMP. Amino acyl AMP. Then your second event is the formation of amino acyl tRNA complex. Amino acyl tRNA complex. So this AMP plus there is a CCA जदि मन थिबो जोटा करथिली tRNA रो. So amino acyl AMP रो AMP साइड आ एठी एक्सेप्टर आर्म रे गोटे ईस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन हुए. This is your amino acyl tRNA complex. Amino acyl tRNA complex. Amino acyl tRNA complex. It
एठी अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हिसाब पर नेक्स्ट पार्ट होची राइबोसोम अटैचमेंट ऑफ mRNA to 30S subunit. That means ribosome smaller subunit सहित एठी mRNA टा attach हबो. How it is attached? There is a 5' to 3'. This is your initiation factor 1. इनिशिएशन फैक्टर 1 टी तमरा mRNA सहित अटैच करिवो. mRNA राइबोसोम रो लोअर सब यूनिट सहित मैच करिबा को हेले से गोटे स्पेसिफिक साइन डाल्गार्नो सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करे. साइन डाल्गार्नो सीक्वेंस रिकॉग्नाइज कला परे ही mRNA सहित फिट करिवो. देन mRNA इनिशिएशन फैक्टर 1 सहित एठी तमरा राइबोसोम सहित अटैच होउची. In the meanwhile, आउ गोटे इनिशिएशन फैक्टर IF3 सब एठी थाए. ये लार्जर सब यूनिट जे पर्यंत ये अछि लार्जर सब यूनिट को लगेई दबो नाही. So these are the first 3 preliminary steps in initiation of translation. First रे एक्टिव हबो, सेकंड रे tRNA सहित conjugate हबो by ester linkage, थर्ड रे attachment of ribosome with 30A with the mRNA. पुनी mRNA फिक्स हबो at sin Delgado or SD sequence. A sequence sin Delgado sequence जोटा कि rRNA थाए. Which part of RNA? That is 16S. RNA केते टाइप रो मु कहि सारछि प्रीवियस क्लास जदि हम रेफर भी कर दबो. वेयर इज दिस 16S? ये 16S टा कोठी कहितली 30S रो गोटे कंपोनेंट प्रोटीन सहित एटा गोटे राइबोसोमल कंपोनेंट जा सहित तमरा mRNA sin Delgado sequence पाइला पर ही फिक्स हबो. देन तार इनिशिएशन कोडन बाहर को रहिला AUG. दिस विल बी लाइक दिस. ए बोली बाबरे इनिशिएशन कोडन सहित फिट है कि तमरा अटैचमेंट होबो. नेक्स्ट स्टेप होजी ना तमरो फर्स्ट ए जो अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स विल बी लोडेड ऑन राइबोसोम. larger subunit लागिबा को हेले IF3 must have to be separated. तेणु IF3 बाहर की पड़ेबो. GTP सहित कंबाइन करिकी तमरो फिक्स हला IF1 मूलरू अछि mRNA अटैचमेंट पई प्लस तमरो मैग्नीशियम आयन इज वेरी नेसेसरी. मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन गोटे ऑप्टिमल लेवल रे रहिबा दरकार सो दैट your both the ribosomal subunits will be attached. Ribosome रो तीनटा साइड लास्ट क्लास रे कहितली A P E amino acid peptidyl and exit. तेणु हमर this part AUG माने एठी UAC थिबो. तेणु फर्स्ट amino acid लागिला F met. डायग्राम क्लियरली देखिले बुझी परिबो एठी ओवल भाबरे रहिला. सो दिस इज योर फर्स्ट अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स एंटर कला राइबोसोमल सबयूनिट रो ए साइड सहित फिक्स हेकी सिटी एभली भाबरे से रहिबो. एभली ओरिएंटेशन रहबो जे एफ मेट टा ए साइड रे ब्लॉक करिक रहिला. तळ पार्ट रे एठी यूएसी फर्स्ट एंटीकोडन एजी सहित पेयर कला एंड एटा होची इनिशिएशन रो लास्ट स्टेप एफ मेट फर्स्ट अमीनो एसिड आसी गला. या परे कोन हबो ना तमरो टीआरएनए मूव कर सारा परे नेक्स्ट स्टेप विल बी राइबोसोम ठीक 3टा न्यूक्लियोटाइड घुंची जीवो. जस्ट 3टा न्यूक्लियोटाइड घुंचीबो. सो हाउ इट विल बी द पिक्चर. इमेजिन करो जदी ये 3टा घर को पळेला ता माने AUG एठी थिला AUG से वर्तमान चली आसीबो एठी. एठी सेकंड अमीनो एसिड पई कोनसी कोड थिबो. F मेट भी सही भली भाबरे एठी पळै आसीबो. काहे कि ना राइबोसोम ही स्लाइड करिछि. राइबोसोम स्लाइड कला परे तापरे A2 second amino acyl tRNA complex आसीबो. just slide कर जिवो. This part is called as translocation. ए इवेंट को कहा जाए ट्रांसलोकेशन.
ଯେତେବେଳେ ରାଇବୋସୋମ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ କରିବ ସେଟାକୁ କୁହାଯିବ ट्रांसलोकेशन। ठीक तीनटा न्यूक्लियोटाइड जो गोटे न्यूक्लियोटाइड जोटा कहली ट्रिपलेट कोडन सेटू कोडन माने ठीक तीनटा ही से मूव करिवो। तीनटा मूव कर साला परे हमर एयूजी टा पछरे रहि गेला जे कि फर्स्ट एफमेट करथिला तापरे सेकंड को पळेला। प्रोकैरियोट रे केते गुटे केस रे एफमेट रु एफ टा डिटैच हुए बाय एंजाइम डीफॉर्मिलेज तनु से फर्स्ट टा मिथियोनाइन हेकी रहिला। तापरे नेक्स्ट पार्ट होजी AA2 सेकेंड अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स रहिला। या पे तार सेमती एंटीकोडन और कोडन थिबे सेही पेयरिंग हैला। तेनु वर्तमान ए दुई जन को भितरे गोटे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो। ए पेप्टाइड बॉन्ड इज एक्चुअली एन अमाइड लिंकेज। एटा होची गोटे पेप्टाइड बॉन्ड। ए बॉन्ड फॉर्मेशन हो ए दुई जन को भितरे। इट इज एन एंजाइमेटिक प्रोसेस व्हिच इज कैरिड आउट बाय the enzyme peptidyl transferase. This is a part of 23S rRNA. एटा मध्ये रेफर करनबो rRNA क्लास 23S rRNA कोठी अछि। इट इज अ पार्ट ऑफ लार्जर सब यूनिट along with 5S जोटा कि एंजाइम भलिया बिहेव करे। सो इट इज अ राइबोजाइम। फर्स्ट नोटेबल राइबोजाइम इज here your peptidyl transferase 23S rRNA गोटे पार्ट या को भीतर गोटे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कला। नेक्स्ट पार्ट इज योर elongation। जमती दुईटा फॉर्मेशन हे सारला नेक्स्ट तमरो गोटे EF2 elongation factor 2 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स अछि जे कि फर्दर नेक्स्ट अमीनो एसिड टीआरएनए गुडा को लेकी आसीबो AA3 AA4 5 6 7 एमती n जत्ते लंबा ही परिबो बा जीन रे जति की कोडन्स थिबे सेति की जाय से अमीनो एसिड आनी की लगी लगी चलथिबो। सो द पिक्चर विल लुक लाइक दिस। एडा हमरो सपोज AAN एमती लागी लागी चलला। This will continue. This process is called as elongation. प्रत्येक थरा EF2 गोटे आनी कि नबो पुनी छाड़िबो पुनी गोटे को चेक करके आनो गोटे साइकिल भलिया कंटिन्यू करे जा फल कि से अमीनो एसिड गोटे को आनी कि ठीक जगह रे इंसर्ट करके जाय अप टू n एठी लिखि छ। तने n केछि भी पारे 200 300 400 किछि भी पारे। गोटे फंक्शनल प्रोटीन में मिनिमम 250 थाए तो 250 जाय से लगे दला। नेक्स्ट विल बी योर टर्मिनेशन। लास्ट पार्ट विल बी टर्मिनेशन। टर्मिनेशन रे कोन हुए ना इफ during this association UAG आसीगला ए जगह बा UGA और UAA ए तीनटा होचनी कहितली स्टॉप कोडन और नॉनसेंस कोडन्स। आंको भितर जदि कि आसीगला यार करेस्पोंडिंग टीआरएनए नाही साइटोप्लाज्म भितरे यार करेस्पोंडिंग टीआरएनए नाही। सो इन दैट केस व्हाट इज द consequence? गोटे रिलीजिंग फैक्टर आसिकी लागिबो या सहित। रिलीजिंग फैक्टर देयर आर 3 रिलीजिंग फैक्टर्स 1 2 3। सो रिलीजिंग फैक्टर गोटे आसिकी लागिबो ये कोन करबो ना फर्स्ट ए बॉन्ड टा को ब्रेक करबो टीआरएनए आ लास्ट अमीनो एसिड रो ईस्टर बॉन्ड टा को ब्रेक करबो। ब्रेक कर सरला परे एठु लूज हे गेला कनेक्शन देन पॉलीपेप्टाइड बाहर की पळेबो। योर पॉलीपेप्टाइड विल बी रिलीज्ड। और गोटे अमीनो टर्मिनस थिबो गोटे CO टर्मिनस थिबो इट विल बी रिलीज्ड। मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्लाइन करे। सो द राइबोसोमल सब यूनिट्स विल आल्सो बी रिलीज्ड और समान पर यूनियन भागी गला। लास्ट रे mRNA फ्री हे जिवो mRNA मध्ये डिटैच हे जाय और डिग्रेड लास्ट रे हवा आरंभ करे पूरा कंप्लीटली डाइजेस्ट हे जिवो बाय सम एक्सोन्यूक्लियस or endonuclease तापरे। सो दिस विल बी द एंड ऑफ ट्रांसलेशन। सो लास्ट रे कोन हला ना जे पर्यंत चली थिला कंटीन्यूअसली कोडन व्हेन UAG UGA और UAA आंको भितर जदी केही गोटे आसी गला सो या पई करेस्पोंडिंग टीआरएनए नाही। सो ये रिलीजिंग फैक्टर बाइंड्स ये रिलीज करिवो फास्ट कोन करिवो ना लास्ट टीआरएनए और अमीनो एसिड रो बॉन्ड भांगिवो सो दैट द टीआरएनए विल मूव लाइक दिस। टीआरएनए बाहर गेला फ्री हे गेला वर्तमान एक्सिट साइड देकी बाहर की पळेबो यार ईस्टर बॉन्ड भांगी जाइछि। लास्ट अमीनो एसिड AN रहिला सी मध्ये डिटैच हे जो वर्तमान राइबोसोमल कैप पाखरु
मैग्नेशियम आयन डिक्लाइन करे IF2 GTP बाहरी जीवो IF3 पुणी आसी बसी जीवो जे कि एसोसिएशन को ब्लॉक करूथला से भली गोटे जगह रे प्लेस हुए इट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लार्जर सब यूनिट टू बी अटैच्ड विथ स्मॉलर सब यूनिट एठी ब्लॉक करके रखला सो दिस विल बी योर एंड ऑफ ट्रांसलेशन और एटा को जाय टर्मिनेशन तनु दिस इज इंपोर्टेंट रिलीजिंग फैक्टर आ कोनो सी टीआरएन नहीं आ ये सेउटू भी सब गुडा को गोटे गोटे को डिटैच करबा आरंभ करिवो तेणु जोटा ट्रांसलेशन रे तैयारी हला एक्जेक्टली सेटा को आमे गोटे प्रोटीन कहि परिबा नाही दैट इज कॉल्ड एज ए पॉलीपेप्टाइड गोटे स्ट्रेट चेन गोटे टू डायमेंशनल फॉर्म रे थिबो गोटे पॉलीपेप्टाइड जे कि अमीनो एसिड द्वारा लिंक है अमीनो एसिड जोटा पेप्टाइड बॉन्ड रे लिंक है जंती गोटे एमिनो साइड गोटे कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप टाइप NH2COH ये वर्तमान फोल्डिंग हो by special class molecular chaperones or chaperonins. NH2COH 3D functional conformation. एटी conformation spelling FOR 3D functional conformation तेणु से प्रॉपर ओरिएंटेशन किसी गोटे समर खड़ा गोटे फाइब्रस प्रोटीन हे पारे गोटे हेलिक्स हे पारे गोटे मेम्ब्रेन प्रोटीन हे पारे बा गोटे एंजाइम भी हे पारे जहां भी हबो गोटे 3D कन्फर्मेशन रे आसीले देन वी विल कॉल इट एज अ प्रोटीन एटा होची एक्चुअल प्रोटीन सिंथेसिस रो एंड पार्ट बट सेटा एक्चुअली ट्रांसलेशन रे पॉलीपेप्टाइड्स थ्योरी हुए so your next part is gene expression and regulation gene expression and regulation how would you gene expression and regulation so expression part ta ebesuda padi sarlani that is the central dogma that means DNA will be converted to RNA and then protein this is the expression pathway किंतु एठी कोनोसी रेगुलेशन अछि कि नै हमें पढिले नाही जे प्रोटीन रो केते अमाउंट दरकार को प्रोटीन दरकार को भली भाबरे तैयारी होबा दरकार so there was no mention about regulatory pathway तेनु regulatory pathway was first discovered and reported by Jacob and Monod while working on E. coli regarding the operon model or operon concept. It is the operon model or operon concept gives clear idea about the regulation of protein synthesis or expression of gene in prokaryotes. Tale, what is an operon? This is your regulator or inhibitor gene. Regulator or inhibitor gene. You know it, this is promoter. This one operator. And A पाखरु आरंभ होइकी. A रु C ये होची structural gene. This is your structural gene. पूरा एठू ए पाखु ए बी सी तीनटा होचंदी स्ट्रक्चरल जीन तेणु गोटे रेगुलेटर जीन रहइबो बा इनहिबिटर जीन जोडा आई देन फॉलोड बाय प्रमोटर ऑपरेटर ए बी सी त माने एटा गोटे डीएनए सेगमेंट ए डीएनए सेगमेंट रे जीन एभली भाबरे अरेंज हेकी थाए दिस पार्ट इज आल्सो कॉल्ड एज सिस्ट्रोन जेतु फंक्शनल प्रोडक्ट एउठू बाहरबो इट इज कॉल्ड एज सिस्ट्रोन और रेगुलेटेड पार्ट इट इज the regulated part or regulated unit
and it is preceded by a regulator unit. Regulatory unit. So clear? Regulated part गोटे regulatory part माने just like एटा regulator टा सेटा तारा fan. Regulator मोडले fan रो change हो speed रो. Fan को change कले किछि regulator रे किछि हुए नि. Same थी structural gene रो किछि change करि परिबन जे याकू control करिया पई. But the regulator gene can control all the type of structural genes. तेणु IPO actually एदिरा gene नो एटा गोटे segment promoter operator जोठी कि RNA polymerase read करिवो data box. So the linear arrangement of genes or structural genes with their regulatory component is called as operon. ताले operon रो definition होची, it is the linear arrangement of structural genes. Structural gene कहले जहारा mRNA और protein तैयारी हो. It is the linear arrangement of structural genes with their regulatory component. With their regulatory component. It is the linear arrangement of structural genes with their regulatory component. The regulatory component कहले हमारा IPO, and this one is structural genes A, B, C. तीनटा structural gene. सही बेसिस रे गोटे तमर एग्जांपल अछि lack operon in Escherichia coli. So what is this lac? This is lactose. Lactose is a disaccharide which is made up of glucose and galactose. हमारा ग्लूकोज होची प्राइमरी सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन. तेणु कौन सी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब रेस्पिरेशन करूची तार ग्लूकोज अमाउंट डिप्लीट करी करी जीवो. गोटे क्रिटिकल लेवल गला पर सी नेक्स्ट अदर सोर्स खोजिवो कोथ्रु ग्लूकोज बाहर करि परिवो. इफ लैक्टोज इज अवेलेबल देयर इज अ सर्टेन सेट ऑफ जीन्स व्हिच कैन मेटाबोलाइज लैक्टोज टू यील्ड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. गोटे मेटाबोलाइट ऑपरेशन बा पूरा कंप्लीट रेगुलेटरी ऑपरेशन बा ऑपेरॉन सिस्टम अछि जोटा कि पूरा तमरो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बाहर तनो ग्लूकोज इज अवेलेबल इन रेस्पिरेटरी पाथवे. सो हाउ दिस लैक ऑपेरॉन लुक्स. This is IPO. यार तीनटा जीन रो नाम होची लैक Z, लैक Y, लैक A. IPO ZYA. I, as already told, ये are regulator gene. ये repressor protein बनाए. Repressor protein. The repressor will bind at this point. Promoter operator site रे बसिला to form a close promoter operator complex. Close कर दला एठी. एठी करबा द्वारा असुविधा कोन हो ना RNA polymerase cannot move out. बाहर को बाहर की आसी परिबो नाही. RNA polymerase एठी halt. Just माने तमे गोटे माळीटे नौजो गंठीटे पके देजो अटकिला से माळीटा आ जाई परिबोनी आगु. तेनु एठी से गंठी भलिया काम करे. सेटु ता ऊपर गोटे कैप भलिया रहिला. प्रमोटर ऑपरेटर क्लोज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कला. RNA polymerase will be halted. ए केस रे याकु कहै जाय स्विच ऑफ. कोनोसी ऑपेरॉन जीन काम करिवे नाही. इट इज स्विच ऑफ. तारे ई तीनटा जीन रो काम कोन ना एमान ताकर रेस्पेक्टिव RNA तयारी करिवे. RNA एंजाइम तयारी करिवे. एंजाइम मानकर ना कोन बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज.
These are the three enzymes. Beta galactosidase, permease and transacetylase. ताकर अलग अलग फंक्शन सबुठ इंपोर्टेंट बा फास्ट फंक्शन होची यार ये लैक वाइज जेते तैयारी हेबो ये मेम्ब्रेन पाखु को जाई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो परमिएबिलिटी को चेंज करबो जाफले बेसी रु बेसी लैक्टोज भीतर को चली आसी परमिएबिलिटी बढ़े कि लैक्टोज भीतर को आनिबो किंतु लैक्टोज इनएक्टिव फॉर्म डाइसैकेराइड क्लोज तार ऑक्सीजन तेरो ट्रांसएसिटाइलेज कोन करबो ताको चार्जिंग करबो ताको एक्टिवेट करबो देन गैलेक्टोसिडेज कोन करबो ना ग्लाइकोसिल बॉन्ड ब्रेक करबो सो योर लैक्टोज विल नाउ यील्ड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज तेणु ग्लूकोज टी बाहरी गला सेटा बाहरीबा पई तीनटा एंजाइम दरकार तेणु एटा हबो केमती ना सपोज ग्लूकोज रो अमाउंट बहुत अमाउंट रे कमी जाई छी डिप्लीट करी छी बाहरु लैक्टोज आसीबो नहले सेल भितरे एलो लैक्टोज तयारी होय इट इज आल्सो एन इंड्यूसर ये जब आसे तो बाइंड करिवो याकू सेपरेट कर दबो प्रमोटर ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स पाख सो द एलो लैक्टोज विल नाउ पुल आउट द रिप्रेशर प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज वर्तमान इजीली फ्लो कला जीन गुडा को ट्रांसक्राइब करिवो ट्रांसक्रिप्शन कर सारला परे एंजाइम तयारी होबे एंजाइम गुडा फुनी मेटाबोलाइज करके बहुत अमाउंट रे ग्लूकोज बाहर करबे ग्लूकोज विल नाउ एंटर टू ग्लाइकोलिसिस सो एज द सबस्ट्रेट हियर लैक्टोज और एलोलैक्टोज induces its own synthesis it is called as an inducible operon it is called as an inducible operon so जेतबेले एग्जाम रे आसीबो डायग्राम करो डिटेल्स देखिबा दरकार नै डायरेक्ट बुझेबा आरंभ कर दबो जे लैक्टोज रु केमिति होची तो बा खाली इंड्यूसिबल ऑपरेरन भी गोटे ऑप्शन तमर क्वेश्चन आस पारे मात्र 2.5 मार्क सेठी तमे डायग्राम न कोले भी चलिबो जदि 2.5 मार्क रे पडिची इंड्यूसिबल ऑपरेरन यू हैव टू राइट द मेकैनिज्म केमिति होची पूरा डायग्राम न कोले चलिबो next we will move to genome so what is genome it is the complete set of genes present in an individual complete set of genes एटी complete set कहले गोटी haploid set धरा जाए it implies the haploid set of genes in a diploid organism एटा diploid बोली हमें haploid धरलो सपोज गोटे बैक्टीरिया केस रे कोन हबो ना तार निजस्व गोटे सर्कुलर डीएनए थिबो सेटे ता जीनोम जदि ता सहित गोटे प्लाज्मिड अछि से दिटा मिसै कि तार जीनोम सो कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स डिस्क्रीटली जते बळे हमें ताकू काउंट करिकि नबा बा एंटायर सम अप करिबा दैट इज कॉल्ड एज जीनोम एग्जांपल गोटे नबा ह्यूमन सेल गोटे ह्यूमन सेल रे हमर न्यूक्लियस रहिले देयर आर 46 क्रोमोसोम्स देयर आर 46 क्रोमोसोम्स किंतु 46 क्रोमोसोम थांदी केमती ना इमान फुनी दुई टाइप रो 44 प्लस XX और 44 प्लस XY मेल हेतिले 44 प्लस XY फीमेल हेतिले 44 प्लस XX ए 44 जो रहिला एटा होजी ऑटोजोम्स बॉडी सेल्स और सोमाटिक क्रोमोसोम्स ए जो रहिला XX और XY एटा सेक्स क्रोमोसोम इट डिसाइड्स द सेक्स सो 44 और XX ताले यार आधा केते 22 प्लस X 22 प्लस X हबो बा एठी जदी करबा 22 प्लस X 22 प्लस Y ता माने एठी 22 प्लस X और 22 प्लस Y ये सब होची जीनोम जदी ह्यूमन जीनोम देखिबा ता माने ये 22 टा 23 नंबर होची X 24 नंबर Y फुनी गोटे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए गोटे ह्यूमन सेल रे 25 टा डीएनए टोटल जीनोम को कैरी करूची 25 डीएनए कैरीज द एंटायर जीनोम नेक्स्ट इज योर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट
It was completed by US government and started in 1990 to 2001. 10-11 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ଖାଲି complete କରିବା ପାଇଁ. So what is Human Genome Project or what are its salient features? Salient features. First, human DNA is 99.99% homologous. तामाने जितने ह्यूमन बीइंग्स अछंती समस्त का डीएनए रो सिमिलरिटी होची 99.99%, 0.01 बा 0.01% जो डिफरेंस होला सेही तरह ही डिफर करी गले सब ह्यूमन बीइंग्स. It is a very large, the genome size, human genome size is about 3.3 or 3 into 10 to the power 9 base pairs. Entire genome size base pair रे मैं पहले 10 to the power 9 order रे आसीबो human genome size. Most of the parts are repetitive DNA. Repetitive DNA. Repetitive DNA माने suppose तुम्हारा VNTRs और mini satellites और micro satellite DNA. Repeats शांति DNA, ATTGGC, ये बहुत थोड़ा repeat है जाइए, that is called as repetitive DNA. There are about 32,000 genes in human beings. 32,000 जीन अछंती. तमरो Y क्रोमोसोम रे सबटु कम जीन अछंती, 21 क्रोमोसोम रे सबटु अधिका जीन अछंती. गोटे एवरेज जीन रो लेंथ, एवरेज जीन रो लेंथ होजी अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर्स. अन्य केस रे 1000 किंतु ह्यूमन केस रे एटा होजी 2000 बेस पेयर्स. सो 32,000 जीन थ्रू पाखापाखि 2000 बेस पेयर रो गोटे जीन. सेही थ्रू इमेजिन करो तार वॉल्यूम केते हिथियो बा केते साइज रो बा केते डीएनए अछंती. मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आर introns are also there. Our non-coding sequence. Dystrophin, what a muscle protein, that gene ta hoji longest. Dystrophin gene is the longest gene in human beings. Now, tomorrow sabudu choto ebe jaha baharchi micro RNA guda hoji, micro RNA genes are smallest. So dystrophin hoji sabudu longest gene. So these are the salient features of Human Genome Project. ये मध्य 2.5 marks. So the last part is DNA fingerprinting. DNA fingerprinting. DNA of persons vary by VNTRs कहते सेटा variable number tandem repeats. जनकर थरे रिपीट अच्छी आउ जनकर दी थर आउ जनकर तीन थर. So by restriction digestion RDT zoology रे अछि restriction enzymes will cleave. तेनु एठी जेतले क्लीव करिवे लेंथ will be different. अलगा अलगा लेंथ रो डीएनए आसीबो. सेटा को जज करा जाय थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. How? The DNA is loaded on a gel cast made up of agarose. मोडी तीनटा सेट नै ता माने तीनटा इंडिविजुअल कर हम कैलकुलेट करिबा. एठी जनकर गोटी पार्ट अछि ता माने गोटे छोटो डीएनए और बड़ डीएनए तयारी हो. छोटो डीएनए रा बहुत बाटा ट्रैवल करबो, बड़ डीएनए ट्रैवल कर परिबो नै. या पाखरे गोटे बड़ डीएनए अछि कंपैरेटिवली आठ एठी हो. या पाखरे आहुरी बड़टे अछि. So तीन जनकर बैंड मिसु नाही. So they are having three different VNTRs. याको पुणी तमरो
सोकिंग पेपर टावल उपरे सोक करके बफर उपरे गिविंग अ वेट ऑफ 500 ग्राम ताकू प्रोब ट्रीटमेंट करा जाए देन फाइनली बाहर तमर डीएनए फिंगरप्रिंट और बैंड्स जनकर तीनटा बाहर सेमती से अनुसार तीनटा 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 करके यार बाहर तीनटा लोकंर तीनटा पैटर्न बाहर like this is the DNA fingerprint so एभली भाव में DNA fingerprint गुड़ा बाहर and what is the application of DNA fingerprinting number 1 कहती in forensics to detect criminals तमरो कौन सी प्रकार मर्डर केस बा कौन सी केस जो ब्लड सैंपल मिले सेथरु जतबे डेवलप करके ताको दिया जाए कि सीमेन सैंपल कौन सी सैंपल रु डीएनए को एम्प्लीफाई करा जिवो देन एम्प्लीफाई रु तार पैटर्न बाहर की डीएनए फिंगरप्रिंट रहिबो नंबर 2 इज पैटर्निटी टेस्ट and number 3 is in molecular taxonomy the markers the markers will speak about the lineage को organism रो को group रो develop करिछि सेटा होछि lineage detection so this is your entire molecular inheritance chapter